ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ 7ଟି ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରାଣାୟାମ କ'ଣ? ପ୍ରାଣାୟାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣାୟାମର ଭୂମିକା, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାବଧାନତା ଏବଂ ସତର୍କତା ସହିତ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଯୋଗାସନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ। ପ୍ରାଣ, ଯାହାକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଊର୍ଜା ବା ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ଆମ ଶରୀରରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖିଥାଏ। ବାୟବୀୟ ଊର୍ଜା ବା ପବନ ହେଉଛି ଏହାର ସଞ୍ଚାଳକ। ଶ୍ୱାସବାୟୁ ବା ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ବା ଚିହ୍ନିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଯଜ୍ଞ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆମର ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଜଳ ହେଉଛି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ବାୟୁ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବାୟୁ ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିଥାଏ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଅପାନ ବାୟୁ, ଉଦାନ ବାୟୁ, ସମାନ ବାୟୁ ଏବଂ ବ୍ୟାନ ବାୟୁ ରୂପରେ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର 3 ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ତଳିପେଟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ଏହି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତଳିପେଟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ, ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ତଳିପେଟ ସଂକୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଛାତି ବା ବକ୍ଷ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ଆମ ଫୁସଫୁସ୍ ବା ଛାତି ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଛାତି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତଳିପେଟ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବା ଦୁଇଟିର ମିଶ୍ରଣ, ଯାହାକୁ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ଉଭୟ ଛାତି ଏବଂ ତଳିପେଟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ବାୟୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ବେଗ ଏବଂ ଦିଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ପ୍ରାଣାୟାମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ନିରୋଗ ରହିବା, ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ଏହି ତ୍ରିଦୋଷକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫ ସ୍ଥିର ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାତ ବା ବାୟୁ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ବାତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଉଭୟ ପିତ୍ତ କଫ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ଓ ଶ୍ୱାସନଳିକା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଏସବୁ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରାଣକୁ ସାଧିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣାୟାମର ଭୂମିକା। ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହେ, ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିନଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଶରୀର ଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କାୟାରେ କାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଦି ବିକାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ୍ରିଦୋଷ ବାତ, ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିଥାନ୍ତି। ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ୱାସରୋଗ,
एवं मस्तिष्क तथा स्नायुजनित रोग धीरे धीरे दूर होता है जदि आपणक शरीर में आनुवंशिक बा जेनेटिक्स प्रॉब्लम किछि अछि कंजेनिटाल डिजीज किछि अछि प्राणायाम द्वारा सेथुरु मध्य आपण रक्षा पाइबार संभावना रही। ओजन रक्तचाप एवं मधुमेह नियंत्रण रे रहे। कोष्ठकाठिन्य भली समस्या दूर हुए। खाद्यर तत्व बा न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक परिमाण रे देहरे लागि थाए। जदि शरीर में हार्मोनल इम्बालांस अछि ताहले से हार्मोन विकृति को प्राणायाम संतुलित करिथाए। जदि आपण कोनोसी औषध सेवन करूछंती एवं शरीर रे ताहा काम करूनी से भली क्षेत्र रे प्राणायाम करिवा द्वारा औषध शीघ्र काम करिथाए। प्राणायामर आउ गोटे गुप्त उपादेयता अछि। जदि शरीर रे कोनोसी रोग हेउछि एवं तार कारक कोनोसी ग्रह ताहले प्राणायाम द्वारा आपण जातक थिबा ए ग्रह दोष जार फल आपण शरीर भोगुची ए प्राणायाम द्वारा ताकू दूर करी हुए। पूरक कुंभक एवं रेचक प्राणायाम करिबा पूर्वरु एई तीनोटी शब्द विषय जानिबा आवश्यक। पूरक अर्थात प्रश्वास वायु ग्रहण करिबा नाक बाटे प्रश्वास वायु ग्रहण करिबा। कुंभक दुई प्रकार ग्रहण करिथिबा प्रश्वास वायु को भितरे किछि समय धारण करने को अंतः कुंभक कहा जाए एवं सेई प्रश्वास वायु को आपण निश्वास आकार जदि छाड़ुछंती बा ताकू रेचक कहा जाए। सेई रेचन परे बिना श्वासक्रिया किछि समय रहिबा को बहिर्कुंभक कहा जाए। साधारण मनुष्य बा संसारी मनुष्य पई सातटी मुख्य प्राणायाम एवं सेगुड़िकर उपकारिता विषय आसंतु जानिबा। सिद्धासन बा पद्मासन किंबा सुखासन इत्यादिर आश्रय आपण नहीं पारिबे। प्राणायाम करिबा समय मेरुदंड एवं बेक सीधा रहिबा आवश्यक। ज्ञान मुद्रा अर्थात बुढ़ा आंगुठी एवं विशी आंगुठी এই দুইটি परस्पर स्पर्श करिवे। अन्य तीनोटी आंगुठी को खोला छाड़ीदेवे। यही मुद्रा रे बसी आपण प्राणायाम क्रिया करिबा आवश्यक। भस्त्रिका प्राणायाम हेउची प्रथम प्राणायाम। दुई नाकपुड़ारे धीरे धीरे आपण प्रश्वास वायु ग्रहण करिवे। संपूर्ण रूपे ताकू ग्रहण करिबा परे हल्का गति रे बा धीरे धीरे आपण निश्वास आकार रे ताकू छाड़ीबे। भस्त्रिका प्राणायाम करिबा द्वारा मस्तिष्कर विकास होता है। मानसिक अभिवृद्धि स्नायविक सबलता एवं रक्त संचालन बढ़ी थाए। रोग प्रतिरोधक शक्ति दूर होता है। भस्त्रिका कफ श्वास एवं फुसफुस जमी कफ को दूर करिबारे सहाय्य करिथाए। थंडा एवं साइनस रोगरे यह अमोघ अस्त्र परि कार्य करे। यह छड़ा गल ग्रंथि पीड़ा गला फुला एवं घंटिका जंत्रणारु आराम मिलता है। थायरॉइड एवं टॉन्सिल कार्यधारा को मजबूत करिथाए। शारीरिक विकार मानसिक दुश्चिंता दूर होता है। शरीरर समस्त कोशिकारे अम्लजान पहुंची थाए एवं सेठू अंगारकाम्ल निष्कासित हो जाए। शरीर रे जो विषाक्त रासायनिक द्रव्य गुड़िक रही सेगुड़िक निष्कासन करिबारे भस्त्रिका प्राणायाम साहाय्य करिथाए। आपणकर किडनी को सुस्थ रखि थाए एवं बलिष्ठ करिथाए। प्रत्येक प्राणायाम 5 मिनिट रु आरंभ करी निजर सामर्थ्य अनुसार 10 रु 15 मिनिट पर्यंत आपण करि परिबे। देखिबा द्वितीय प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम जहाँकि सबु प्राणायामर मूल बा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्राणायाम। ध्यान मग्न हुई नाभि चक्र रे ध्यान को केंद्रित करंतु। लंबा प्रश्वास नियंतु। पेट को पछ को धक्का दे
आपण क्षिप्र गति रे वायु को परित्याग करंतु नासिका बाटे। निश्चय किछि ना किछि शब्द आपण जानि परिबे। आपे आपे वायु आपणक नासिका बाटे पशिब, पुणी ताकू क्षिप्र गति देई बाहर को बाहर करिवे। कपालभाति प्राणायाम अभ्यास करिबा द्वारा तली पेटरे थिबा समस्त अंग प्रत्यंग सुदृढ़ होइथांती। अंतःनळी, क्षुद्रांत्र, बृहदंत्र, यकृत, पाकस्थली ए समस्त अंग सक्रिय एवं क्रियाशील हुअन्ति। नासिका एवं मस्तिष्कर रक्त संचालन सुदृढ़ होइथाए। शरीरर कांति वृद्धि पाइथाए। मेदबहुलता, डायबिटीज, एसिडिटी, मूत्राशय रे थिबा समस्त प्रकार रोग ए सबुथिरु आराम मिले। पेटर मांसपेशी सक्रिय हुअन्ति। खाद्य हजम करिवार शक्ति वृद्धि पाइथाए। कोष्ठकाठिन्य दूर हुए। केश उपुड़िबा, पाचिबा ए सबु समस्या दूर होइथाए। चर्मरे चिकणता आसीथाए। व्रण समस्या दूर हुए। एहा छड़ा जदि कौनसी प्रकार प्रोस्टेट, थाइरॉइड, पिट्यूटारी ए ग्रंथि गुड़िकरे कौनसी प्रकार रोग अच्छी से सब मध्य दूर होइथाए। मानसिक अस्थिरता दूर होइथाए। प्राणायामर आरंभ एवं अभ्यास उपयुक्त गुरुंकर परामर्श एवं तत्वावधान रे करंतु, नचेत देह सहित प्राण सहित खेलिले निश्चिंत भाव में असुविधार पड़िबे। एबे देखिबा तृतीय प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। प्रथमे दीर्घ प्रश्वास नहीं ताको संपूर्ण रूपे निश्वास आकार रे त्याग कला परे कौनसी श्वासक्रिया नकरी तीनोटी मुख्य बंध आरंभ करंतु। प्रथमे मूल बंध, तापरे उदन बंध एवं शेषरे जलंधर बंध। खोड़ी अंश को कंठ उपरे स्थापन करंतु। किछि समय रहिला परे निजर मथा को सीधा करंतु एवं पुणी थरे श्वास शरीर भीतर को प्रवेश करंतु। बाह्य प्राणायाम द्वारा मानसिक अस्थिरता, चंचलता, कामुकता, भावप्रवणता ए सबु नाश होइथाए। स्मृति शक्ति, मेधा शक्ति मजबूत होइथाए। सारा शरीर रे पोषक तत्व संपूर्ण रूपे पहुंची थाए। एवं जो माने ब्रह्मचर्य रक्षा करने को चाहूँगी यही प्राणायाम निश्चिंत करने आवश्यक। यापरे अनुलोम विलोम प्राणायाम देखिबा। अनुलोम विलोम प्राणायाम रे मुख्य जिनस हेउची स्नायु एवं मस्तिष्क। डाहाण हातर वृद्धांगुली द्वारा डाहाण नाकपुड़ा बंद करी बाम नाकपुड़ारे प्रश्वास ग्रहण करंतु। बाम नासारंध्र को मध्यमा एवं अनामिका अंगुली रे बंद कर दियंतु एवं डाहाण नासारंध्र बा नाकपुड़ा खोली निश्वास धीरे धीरे छाड़ंतु। पुणी डाहाण पुड़ारे श्वास ग्रहण करी बाम पुड़ारे श्वास त्याग करंतु। एहाकू सबुबेले मध्यम बेगरे रखिबे। जोर जोर बा तरबर रे करिबे नाही। धीरे धीरे करंतु एवं समय को धीरे धीरे बढ़ांतु। तीनोटी नाड़ी इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना को सक्रिय एवं शोधन करिबा अनुलोम विलोम रो उद्देश्य। शरीर बलिष्ठ रही थाए, रक्त संचालन होता है। मस्तिष्क को रक्तर प्रवाह अधिक परिमाण होता है। उच्च रक्तचाप पई यह विशेष फलप्रद होता है। या छड़ा जो मानकर दुस्वप्न एवं दुश्चिंता आसुची एवं राति रे निद ठीक रे हो नहीं, सेमाने अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास करि पारंती। श्वास अधकपाली एवं पारालिसिस भली समस्या तथा पिट्यूटरी एवं थायरॉइड ग्रंथि जनित समस्या मध्य अनुलोम विलोम प्राणायाम द्वारा दूर होइथाए। परवर्ती प्राणायाम
उज्जाई प्राणायाम। एथिरे श्वासनली प्रथमे संकुचित करने शिखंतु, तापरे नासिकारे बलपूर्वक निश्वास भर्ती करी एक प्रकार शाश्वत शब्द सृष्टि करंतु। जलंधर बंध लगाई जेपरी थोड़ी को कंठ सहित संलग्न करी किछि समय रखी जलंधर बंध खोली डाहाण नाक बंद रखी बाम नाकरे श्वास धीरे धीरे छाड़ंतु। एमिति 3 ରୁ 5 थर अभ्यास करंतु। उज्जाई प्राणायाम द्वारा घुंगुड़ी समस्या, मानसिक अवसाद, हृदय दुर्बलता, अजीर्ण, जख्मा इत्यादि रोग दूर होता है। छोट पिलांकर पाटी लागिबा बा खनेई खनेई कहवा समस्या मध्य दूर होता है, किंतु छोट पिला यार अभ्यास करने पूर्व उपयुक्त गुरुंकर परामर्श नेबा आवश्यक। शीताली प्राणायाम। शीताली प्राणायाम रे जीभ को नली भली मोड़ी पाटी द्वारा पूरक बा श्वास ग्रहण करंतु। एमिति किछि समय नासिकारे रेचक करंतु बा बाहर को श्वास छाड़ंतु। एहाकु ग्रीष्म दिन रे करिबा द्वारा शरीरर अतिरिक्त तापमात्रा दूर होता है, शरीर रे शीतलता मिलता है। जो मानकर अजीर्ण एसिडिटी होउची सेमाने शीतल प्राणायाम करिपारिबे। जदि भोक एवं शोष असंतुलित अवस्था अच्छी ताले शीताली प्राणायाम द्वारा आपण को लाभ मिल पारिबो। शेषरे देखिबा भ्रामरी प्राणायाम विषय रे। वृद्धा आंगुली द्वारा 2 कान को संपूर्ण बंद करी रखंतु। मध्यमा अनामिका आंगुली को चक्षु उपरे एवं कनिष्ठ आंगुली को गाल उपरे रखंतु। तर्जनी को कपाल रे स्थापन करंतु। लंबा श्वास नहीं भ्रमर गुंजन शब्द कला भलिया मन भितरे यही शब्द सृष्टि करंतु एवं धीरे धीरे निश्वास छाड़ंतु। पाटी खोलिबे नहीं। एही भली 5 ରୁ 10 थर अभ्यास करंतु। एहा द्वारा मन को नियंत्रण रे रखी हुए। कौनसी प्रकार मानसिक बा स्नायु जनित समस्या थिले ताहा दूर होता है। मेधा शक्ति, घ्राण शक्ति एवं स्मृति शक्ति वृद्धि होता है। शरीर रे जदि अत्यधिक ठंडा रहुची बा ठंडा को सह्य करि पारु नाहंती, मुंड व्यथा, अधकपाली एभली समस्या अछि, भ्रामरी प्राणायाम द्वारा ता धीरे धीरे दूर होता है। प्राणायाम करिबा समय केतेगुड़िए सावधानता और सतर्कता एवं केउ माने प्राणायाम करिबे नहीं आसंतु देखिबा। विशुद्ध वायु चलाचल स्थान रे प्राणायाम करंतु। घरे करुथिले झरका कबाट खोला रखंतु। मलमूत्र त्याग पर पेट खाली थिबा समय रे प्राणायाम करंतु। आवश्यक स्थले दुर्बल लगुथिले पेट को हल्का एवं शरीर को शक्ति जोगाउथिबा खाद्य जेमिति कि घी, गुड़, किशमिश किंबा महू किंबा फल इत्यादि अल्प परिमाण रे सेवन करि पारंती। ढिला और हल्का पोशाक पिंधंतु। पद्मासन, सुखासन बा सिद्धासन रे बसंतु। मेरुदंड सीधा रखंतु। आखि को बंद रखंतु। खाद्य खाइबार 4-5 घंटा परे प्राणायाम करंतु। धीरे धीरे आरंभ करंतु। अल्प समय करंतु। थकी गले विश्राम नियंतु। छोट पिला 10 वर्ष बयस भितरे थिबा पिला प्राणायाम अभ्यास करंतु नहीं। अधिक वयस्क व्यक्ति, वृद्ध एवं महिला माने मासिक धर्म और गर्भधारण समय तथा सार्वजनिक ज्वर समय प्राणायाम करंतु नहीं। उच्च रक्तचाप, हृदरोग, किडनी समस्या तथा कौनसी बड़ रोग थिबा व्यक्ति बिना चिकित्सकंकर परामर्श रे प्राणायाम करंतु नहीं। प्राणायाम करिबार अध घंटा परे खाद्य किंबा पानीय ग्रहण करंतु। प्राणायाम करि सारिबा परे ओम उच्चारण करि सारिबा परे शवासन रे विश्राम नियंतु। आशा करुछि भिडियोटी रे देइथिबा इनफॉरमेशन निश्चिंत भाव
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବେ।